A very good morning, everyone. Students, today we are going to start the types of non-finite verb. Dear students, if you watch this video carefully till end, I assure you these non-finite verbs will be very easy for each one of you. Okay, so watch the video carefully. So non-finite verbs we have discussed earlier also what the non-finite verbs are. So these are the verb which do not change their forms according to tenses and number. So the verb which do not change, they remain same in all the conditions, so they will called non-finite verb. So today we are going to discuss the types of a non-finite verb. So the first type we are going to do is a gerund. It is called gerund. The second one is infinitive. What is this? Infinitive. The third one is participle. Third one is participle. So first of all we are going to do the first part, gerund, in detail. So what the gerund is, first of all you need to see it is, what is gerund? The ing form, the ing form of the verb that is used as a noun. Students, I have written a very short definition for a gerund, what a gerund is. So gerund होने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उस verb की form में ing जरूर होनी चाहिए. अगर ing नहीं है तो हम उसको gerund नहीं कह सकते. The second condition is it should be used as a noun. Noun हम सबको पता ही है कि noun क्या होता है, naming words. Nouns are used as a name. तो naming words जो भी होते हैं उनके हम क्या कहेंगे, noun कहेंगे. So what is the definition of a gerund here? The ing form of the verb that is used as a noun is called a gerund. ओके, सो सी इट अगेन. जेरेंट हम उसे कहेंगे जिस वर्ब में आईएनजी लगी होगी और वो वर्ब किसी एक्शन की तरह यूज ना होकर एक नाउन की तरह यूज होगी. ओके, दैट इज कॉल्ड अ जेरेंट. सी द एग्जांपल्स. Swimming is the best form of exercise. Swimming is the best form of exercise. So first of all you need to figure out which word consists of ing. ing कौन से word में है यहाँ पे? Undoubtedly swimming. Okay, swimming consists of ing. Now you have to see whether it is a gerund or a finite verb. ओके, सो ये फाइनाइट वर्ब है या जेरेंट है, ये हमें देखना है. सो लेट्स सी whether it is completing the definition of gerund or not. So first of all ing form, it is ing form but should be used as a noun. तो noun हमें पता ही है कि नेम की तरह यूज होता है. तो यहाँ देखना, मुझे बताओ क्या कोई स्विमिंग कर रहा है यहाँ पे? या nobody is swimming. It means this word has not been used as a verb. ये word एक verb की तरह यूज नहीं हो रहा है. So, किसकी तरह यूज हो रहा है? एज अ नेम. नेम की तरह यूज हो रहा है, एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है कि बेस्ट एक्सरसाइज की फॉर्म क्या है? स्विमिंग. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ noun. So this word has been used here as a noun, as a name. That's why we are calling it a gerund. I like reading books. I like reading books. So undoubtedly you will pick it up out ing form here. अब आपको ये देखना है कि ये verb है या noun है. अब मुझे बताओ, I subject है यहाँ पे, क्या यहाँ पे I books reading कर रहा है? नहीं कर रहा ना, अभी कोई रीडिंग नहीं कर रहा है ये. तो ये वर्ड एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है. तो किसकी तरह यूज हो रहा है? व्हाट डू आई लाइक? वी हैव स्टडीड ऑब्जेक्ट अर्लियर. ओके, सो व्हाट डू आई लाइक? रीडिंग बुक्स. वोट का आंसर हमें क्लियरली मिल रहा है. वोट का आंसर हमें कौन देता है? ऑब्जेक्ट देता है. और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है. ठीक है, तो वैसे भी ये चीज़ क्लियर है कि ये वर्ड एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है. ये वर्ड कैसे यूज हो रहा है? एक नाम की तरह यूज हो रहा है. सो इट विल बी कॉल्ड अ जेरेंट.
Okay, look at the more examples. C is eating ice cream. Okay, C is eating ice cream. Look at it. अब देखना इस eating को देखो पहले तो, ठीक है, क्या यहाँ पे सी ईट कर रही है? यस, एक्शन की तरह यूज हो रहा है ये वर्ड. यस, सो इट इज कॉल्ड हियर अ फाइनाइट वर्ब. और ये भी डिसाइड करने के लिए कि ये फाइनाइट वर्ब है, इसे आप चेंज करोगे तो ये चेंज भी हो जाएगी. ठीक है, दिस इज कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इफ वी कन्वर्ट द सेम वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, then we will write it like this: she eats ice cream. In simple past we will write she ate ice cream. देखो, सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि ये ing फॉर्म तो है, लेकिन ये किसकी तरह यूज हो रहा है? एक एक्शन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि अभी जो सी है वो क्या कर रही है? ईटिंग कर रही है. तो ये श्योर हो गया कि ये वर्ब की तरह यूज हो रही है. तो ये वर्ड हमें क्या कहेंगे? इसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे. ये नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप ही नहीं है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप नहीं है तो हम इसे जेरेंट नहीं कह सकते. ओके, look at the next example. She likes eating ice cream. Now look at it. ओके, तो यहाँ पे क्या सी ईट कर रही है अभी? नो, अभी ईट नहीं कर रही है ना वो. क्या बताया जा रहा है? सी लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम. उसे आइसक्रीम खाना पसंद है. तो ईटिंग आइसक्रीम यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है? एज अ नेम यूज हो रहा है. यहाँ पे कोई आइसक्रीम खा नहीं रहा है, तो एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा, नेम की तरह यूज हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? जेरेंट कहलाएगा. लेकिन यहाँ पे ये वर्ड एक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट verb. Okay, okay, for helping you to identify gerund, look at these helping verbs. Do you know the helping verb of continuous tense or perfect continuous tense? Okay, if you know it's better, if you don't, just look at them. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होंगी इज, एम, आर. पास्ट कॉन्टिन्यूस की होंगी वोज वर्ब. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की विल बी और शैल बी. नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस: has been, have been, had been, will have been, shall have been. These are the helping verb of continuous and perfect continuous. Now why we are talking about these helping verbs? These helping verbs will help you a lot to identify whether the verb is finite verb or gerund. Okay, okay, how they will help? Now I will tell you. Listen, 90% आपको अगर किसी भी मेन वर्ब से पहले, मतलब आईएनजी फॉर्म से पहले, अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स मिलती हैं तो वो वर्ब कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी, ना कि एक जेरेंट होगा. ठीक है, क्योंकि जेरेंट से पहले आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिलेंगी. ओके, ये हेल्पिंग वर्ब्स किससे पहले मिलेंगे? एक्शन वर्ड से पहले. ओके, और अगर वो वर्ड एक्शन वर्ड है तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ बेटर वे, लुक एट दीज एग्जांपल्स. राइडिंग अ बाइसिकल इज क्वाइट इजी. राइडिंग अ बाइसिकल इज क्वाइट इजी. अब आपको ये देखना है सिर्फ कि ये V4 है, आईएनजी वर्ड है. इससे जस्ट पहले देखो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? नो. ओके, अब यहाँ पे कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि ये वर्ड क्या कहलाएगा? यहाँ पे जेरेंट कहलाएगा. ओके, लुक एट द सेकेंड. माई फ्रेंड इज राइडिंग अ बाइसिकल. माई फ्रेंड इज राइडिंग अ बाइसिकल. ओके, अब देखो जस्ट राइडिंग से पहले क्या दिया हुआ है? कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी. ओके, मॉम इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग. मॉम इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग. तो जस्ट कुकिंग से पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑफ. कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ड यहाँ पे क्या कहलाएगा? जेरेंट कहलाएगा. मॉम इज कुकिंग. अब कुकिंग से जस्ट पहले देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो ये वर्ड यहाँ पे क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी. ओके, तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं जस्ट आईएनजी फॉर्म से पहले, तो वो वर्ड्स टेंस में यूज हो रहे हैं, और टेंस में यूज हो रहे हैं तो मतलब वो वर्ब क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी.
Okay, but remember one thing, in interrogative sentence, okay, these helping verbs will be used just after wh word. So in interrogative sentence the formation will be wh word, then helping verb, then subject, and then v4 will be there. So don't be confused in this situation. Okay, next example, you have to say my hobby is swimming and I am swimming. ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर जैसा हमारा रूल कह रहा है कि जस्ट V4 से पहले अगर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो हम उस वर्ब को क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे, ना कि जेरेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये जेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1% ऐसा होगा। किस कंडीशन में होता है अगर आपको पता हो तो यहाँ पर जो स्विमिंग है वो एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है। देखो पहले, माई हॉबी इज स्विमिंग, क्या ये एक्शन की तरह यूज हो रहा है? एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है और एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसे फाइनाइट वर्ब नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट आई एम स्विमिंग, लेकिन यहाँ पे देखो अब आई क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, फाइनाइट वर्ब कहोगे। ओके, जब तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो ना कि यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है या जेरेंट है, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि वो वर्ड एक्शन की तरह यूज हो रहा है या फिर नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर एक्शन की तरह यूज हो रहा है तो वो वर्ब क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब, और अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वो वर्ब क्या होगी, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट का टाइप कौन सा हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा ये। ओके, नाउ यू सी योर होमवर्क, write whether the underlined verbs are gerund or finite verb. Okay, you need to write whether the underlined verbs are gerund or finite verb. Remember, आपको gerund कैसे identify करना है, वो एक्शन वर्ड की तरह यूज नहीं होना चाहिए, वो एक नेम की तरह यूज होना, नाउन की तरह यूज होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपका जो 99% आपका इम्प्लीमेंट रूल हो सकता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख के आप कर सकते हो। ओके, सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर होमवर्क, योर बुक सेल्फ नीड्स पॉलिशिंग। सो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ पॉलिशिंग को। आपको बताना है कि पॉलिशिंग यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है या फिर जेरेंट है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पे मैं लिसनिंग को अंडरलाइन कर रही हूँ। अब आपको बताना है कि लिसनिंग यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है या फिर जेरेंट है। थर्ड एग्जाम्पल आपका है वाई were you laughing at her? So here I'm underlining laughing, need to tell about laughing, whether finite verb or gerund. Next one is the baby is sleeping peacefully. So here I'm underlining sleeping. Next one is I was annoyed at missing the bus. यहाँ पे मैंने missing को underline किया है। He loves jogging early in the morning. So jogging को बताना है आपको whether this is finite verb or gerund. They are jogging in the park. So again I have underlined jogging here and you need to tell whether this is finite verb or gerund.